ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شام کو کوئی کلاس وغیرہ نہیں تھی، ہم دونوں ٹریک سوٹ ڈال کر پی ٹی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بڑا خوبصورت ٹریک بنا ہوا تھا۔ 400 میٹر کے ٹریک پر 20 چکر لگانے کے بعد ہم دونوں جم میں گھس گئے تھے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں بلا کی قوت برداشت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ سردار خان کی طرح جوشیلے سنائپر زیادہ دیر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، کیونکہ دوران مشن ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ذلت آمیز برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر دم ساتھ کر لیٹنا پڑتا ہے۔ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سکت ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور پھر بھوک پیاس کا تو سنائپر کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ سنائپر کی ٹریننگ کی شروعات کے ساتھ استاد اپنے شاگردوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وقت پڑنے پر بہت کم سنائپر ان باتوں پر پورا اترتے ہیں۔ ہم جم سے باہر نکلے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ کمرے میں جا کر ہم نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر شام کی نماز وہیں کمرے میں پڑھ لی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک بار پھر تمام سے ملاقات ہوئی۔ جینیفر مجھے شری کانت کے ساتھ گھومتی نظر آئی، مگر میرے لیے یہ بات اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یوں بھی میں یوسف ثانی نہیں تھا کہ وہ میرے اطراف میں گھومتی رہتی۔ اتنی گپ شپ بھی اس نے جانے کس لیے کر لی تھی۔ سب سے بڑھ کر میں خود بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی قربت میں مجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا تھا، اور پھر لڑکی بھی جینیفر جیسی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ سب سے بڑھ کر اس وقت میں پاک آرمی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ گو اس علاقے میں عورت کی قربت کو غلط نہیں سمجھا جاتا، مگر میرا دین اور معاشرہ تو اس تعلق کو برا گردانتا ہے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حرام اور حلال ہر قسم کی خوراک دستیاب تھی۔ حلال کھانے میں سبزی، چاول اور چکن کی ڈشیں بنی تھیں، جبکہ دوسروں کے لیے جو کچھ پکا تھا نہ تو ہم ان ڈشوں سے واقف تھے اور نہ واقفیت کا کوئی شوق ہی تھا، اس لیے ہم اپنے کھانے کی جانب متوجہ رہے۔ ہم وہاں پر 10 مسلمان تھے، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیزیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مسلم کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مسلم چاہے کسی بھی قوم، علاقے یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، خدا، رسول و قرآن کی ایک اندیکھی ڈور انہیں آپس میں باندھے رکھتی ہے۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ مسئلہ سردار خان کے لیے تھا کہ اسے اردو اور پشتو کے علاوہ کوئی زبان بولنا نہیں آتی تھی، اس لیے مجھے ہی مترجم کے فرائض سر انجام دینا پڑتے۔ کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جینیفر بھی مجھے اکیلی ہی سپورٹس کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی، شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ یوں بھی اس عمر تک امریکن لڑکیاں درجنوں بوائے فرینڈ بھگتا چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک LED موجود تھی، مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنائپنگ کے متعلق کتابوں اور سنائپرز فلموں کے ساتھ تھی۔ ایک شیلف میں سنائپنگ کے متعلق مختلف کتابیں موجود تھیں، کچھ سنائپرز رائفل کے متعلق تھیں اور کچھ مختلف سنائپرز کے تجربات کے بارے میں تھیں۔ کمرے میں ایک کمپیوٹر اور درجنوں CDs بھی موجود تھیں۔ ہم سنائپر کی زندگی کے متعلق ایک معلوماتی فلم لگا کر دیکھنے لگے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک امریکن سپاہی پاکستانی سپاہی سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت بہتر اور جدید سہولیات کو بروئے کار لا کر کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سنائپر کورس کے لیے آئے تھے تو ٹریننگ میدان کے علاوہ ہم تمام کے رہائشی کمروں میں بھی انہوں نے ایسی سہولیات مہیا کر دی تھیں کہ ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت بھی سنائپنگ کے متعلق کافی کچھ سیکھ سکتے تھے۔ کوئی بھی انسان کبھی اپنے فن میں کامل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی عقل مند زندگی کے کسی مرحلے پر یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ابھی اسے سب کچھ معلوم ہے۔ بقول سقراط، سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار حسین کو کہا، آج کے بعد ہم پشتو میں گفتگو کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتو سیکھنے کا شوق ہے، اور اب ایک خاندان کی صحبت بھی میسر آ گئی ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاکید کی تھی۔ استاد عمر دراز؟ ہاں، استاد عمر دراز۔ میں نے اسے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتا دیا۔ بڑے خوش قسمت ہو یار۔ میں بھی کہوں ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے پشتو سیکھنا کسی فارغ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے تو ٹھیک تھا، کہیں سنائپر ٹریننگ ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ فکر مکوا مڑا، فکر نہ کرو، میں مزاحیہ لہجے میں بولا، اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔
अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहन कर गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। परेड शुरू हुआ तो एक उदेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर बैठ गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शोख आवाज़ सुनाई दी। वो सूरन मंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया है सूरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नेम प्लेट लगी है। नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का फ़ायदा। मुझे मालूम था कि वो ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना पड़ी। सेपेर को हम ट्रैक पर दौड़ते रहे कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले क्लार्क और डोनाल्ड पास्को तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोनाल्ड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये यहूदी मुझे काफ़ी दफ़ा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नजर आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार खान ने अपनी रफ्तार तेज़ करना चाहिए, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। उन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक के 1 या 2 चक्कर लगाने हैं भोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा कर लूँगा और उन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो गई थी। यार, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझाकर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले चक्कर ही में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की जानिब जा रहे थे। देख लिया, बस यही उनकी प्रैक्टिस थी। वो हमें चिढ़ा रहे थे जीशान। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था। तो चिढ़ाते रहें, हमें ज़रूरत ही क्या है चिढ़ने की। ये कोई मुकाबला तो नहीं था ना। तुम्हारा तो हर बात में अलहदा फलसफा होता है। कल इस खूबसूरत लड़की को भी खपा कर दिया था, अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही है। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें उसके खफा होने का गम है या उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर। मतलब मैं इससे कह दूं कि वो हिंदुओं के साथ ना घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ़ होती है, और अगर वो ख़ुद को अकेला समझती हो तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? चिनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मेरी बाजी को क्या पता कि उसका शौहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी बू हमारी बहन फ़ौरन सूंघ लेती है। यार, मजाक उड़ाने की कोशिश न करो, मैंने यूं ही कह दिया था, मेरी तरफ से बाढ़ में जाए। जवाबन में हंसकर खामोश हो गया था कि ज़्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा था। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी केट वाटसन भी उसके हमरा थी। दोनों ने चुस्त पजामे पहने हुए थे। बलाई लिबास भी फ़कत ब्लाउज़ पर मुश्तमिल था, मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानी होती। वहाँ की औरतों के नज़दीक तो वो एक मुकम्मल लिबास था। बेहया औरतें। सरदार खान ने नाक भूं चढ़ाई। देख लो, तुम मुझे उनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज़ होता है। वो फ़लसफियाना लहजे में बोला, मोहब्बत ना सही, हिंदू के बच्चे से जंग तो है ना। सरदार, जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलता है? क्या? यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो। वो खिफत से बोला, ज़ीशान भाई तंज कर रहे हो। तो और क्या करूं? तुमने उसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। वो देखो, काफर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा, भाड़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं उन तितलियों की पुश्त को घूरने लगा जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से भी एक कदम आगे का लिबास ज़ेबितान किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। उनके पजामे जिस्म का असल रंग छुपाने के अलावा किसी उस को छुपाने की अहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह के स्किन टाइट पजामे का आम रिवाज है, बल्कि हमारे लिबरल्स हम वतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी तरह जॉगिंग ही कर रही थीं, इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार रहा। श्रीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर उनके करीब आने के मुंतज़िर रहे। जैसे ही वो दोनों उनके करीब पहुंची, वो उनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे। हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो चारों भी शौख जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मानी ख़ेज़ लहजे में पूछा, क्या हाल है साथियों? वो गोया हमें ये जता रहा था कि उसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आज कल से कुछ बेहतर है कि ये बला सर से टली। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, अब मुझे उसके जायके का क्या पता, मैंने चखा थोड़ा है उसे।
यूं भी हम मुसलमानों का मिजाज इस बारे में मुख्तलिफ होता है, हम किसी के बचे या फेंके हुए माल को मुंह नहीं लगाते। हा हा हा, श्रीकांत ने मसनूई कहका लगाया। उसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हा हा हा, मैंने भी कहका लगाकर उसका साथ दिया था। उसी वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लगी लिपटी रखे सब कुछ उसके गोशे गुजार कर दिया था। उसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भपका होकर मेरे पास आई। यूं वो गाली बकने लगी थी, मगर फिर न जाने क्या सोच कर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसिर हुई। तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कोई बात नहीं की कैप्टन, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। मिस्टर कांत को तो की है ना? उसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ा। नहीं, श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने उसे बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी ज़ात को गुफ्तगू में घसीट रहा था, तो मेरा जवाब देना तो बनता था ना। मिस्टर जी, अपनी हद में रहो। कैप्टन जेनिफर हिंसले, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। अगर नाम लेना नहीं आता तो प्लीज़ मुझे मुखातिब ना हुआ करो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? सार्जेंट रेगनवाच हमसे थोड़ा दूर एक्सरसाइज कर रहा था। हमारे दरमियान तल्ख कलामी सुनकर उसने मेरे नज़दीक आकर पूछा। नहीं शुक्रिया दोस्त, कैप्टन जेनिफर हिंसले को कोई गलतफहमी हुई थी। ओके कहकर वो कंधे उचकाते हुए वापस मुड़ गया। रेगनवाच के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार खान उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है। अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। क्यों, पठान होना कोई बुरी बात है क्या? तुम लोग पठान को बेवकूफ़ समझते हो ना। बिल्कुल गलत। ये किसने कहा कि पठान बेवकूफ़ होते हैं? पठान तो गैरत, जुर्रत और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता उन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में ज़रा जल्दी आ जाते हैं। असल बात बताओ, मुझे टरखाने की कोशिश न करो। कमरे में बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं, कहकर मैं पुशअप निकालने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का अपर उतार कर भोंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे थे, बिल्कुल आजकल की इंडियन फिल्मों के हीरोज़ की तरह, जो सीन की डिमांड न होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बज़िद नज़र आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात कि फ़िल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डमी के इस्तेमाल से ये मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ उन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे कि वो किसी अमेरिकन लड़की को मुतासिर कर सकते। खैर, ये मेरी ज़ाती राय है। ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ सिर्फ मसल्स देख कर ही मुतासिर होती हूँ, उनकी कोई दूसरी खूबी भी उन गोरियों को पसंद आ सकती थी। मश्क के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर निकल आए थे। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दिया। एक बात कहूँ ज़ीशान भाई, मुझे लगता है ये गोरी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले रही है। भला वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। यार, सामने का बात है, वो कल से उन लोगों का साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफरत है। फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा खामखा तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चिनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना उसका आए रोज़ का मामूल था। अब देखो, वो मेरी बीवी है। खान साहब, साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल कराना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, वो चिनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है, शौहर के नाम की मखलूक के लिए बराबर ख़तरनाक होती है। वैसे ज़ीशान भाई, मुझे तो चिनारे का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, उसकी ज़िद, ये बहुत याद आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत उसके गुस्से में होता है, उसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। सही कहा, मैं ठंडा सांस लेकर माहीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की जिरा करती हैं, और खफा होकर या रूठ कर भी वो अपने खावन का उतना ही ख्याल रखती हैं जितना खुशी की हालत में रखती हैं। बग़ैर कुछ कहे खाने के बर्तन सामने ला धरना, बेतवज्जी ज़ाहिर करते हुए भी मुकम्मल ध्यान रखना कि प्लेट में सालन ख़त्म तो नहीं हो गया या पानी का गिलास तो खाली नहीं हो गया। बिस्तर पर लेटते हुए ऐसी हरकत करना कि शोहर को मालूम होता रहे कि बेगम साहिबा जाग रही हैं, सोई नहीं, और शोहर साहब के पास मनाने की गुंजाइश मौजूद है। बज़ाहिर लाताल्की का अंदाज़ लिए शोहर की हर सहूलत का पूरी तवज्जो से जायज़ा लेना, ऐसा कोई मशरकी बीवी ही कर सकती है। मगरब के हिस्से में ये मोहब्बतें कहाँ, वहाँ तो बस सारी मोहब्बतों का महवर ही मर्द औरत की जिस्मानी कशिश या दौलत का हुसूल होता है। व्यूअर्स, हमारी आज की एपिसोड भी अपने अख्तिताम को पहुँच चुकी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।